हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 8 के साइंस में आपका स्वागत है। हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और हमारा अगला चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा का मतलब जिसको इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, जो कृत्रिम हो, ठीक है, जो इंसानी कर्मों के द्वारा बनाया गया हो, वो सिंथेटिक होता है। इसको आप आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल और सिंथेटिक दोनों का लगभग यही मीनिंग होता है कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। तो आइए थोड़ा इस रिलेशन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, धरती पर जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सम ऑफ द थिंग्स आर नेचुरल एंड सम ऑफ द थिंग्स आर artificial. So various kinds of things we are having around us are natural and various kinds of things we are having around us are artificial, like this marker, this board, this building. Okay, they are artificial, they has been created by man. But my body, air, metallic objects, that has been not created by us, they are natural. Okay, so there are many things and something has been divided as natural and some are artificial. So clothing materials are also a kind of thing that we can see around us. They are also a kind of thing that is present in our surrounding. So clothing materials are made up of fibers. Clothing materials are made up of fibers, and there are fibers are of two kinds. First is natural fiber and second one is synthetic fiber. Now, what is natural fiber? So all the kinds of fiber that is obtained from the plant and animals, okay, that is called natural fiber. Like cotton, silk, wool, they are natural fiber. If we have to get these fibers, if we have to get cotton, wool, then we have to depend on the nature. For cotton we have to plant tree, a cotton plant, and if we want wool, then we have to depend on the animals, sheep, goat. But synthetic fiber are those fiber that can be created in laboratory with the help of chemicals. We don't have to depend on the nature. We can made it as per our requirement. We can made it in a very large amount or in a very small quantity. So there is a difference between natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber depends upon the animal, plant and nature, but synthetic fiber depends upon the availability of the chemicals from which you are making it, an effort of the human. As much as he will have the effort to make it, he will make more and more synthetic fiber. जितना अधिक effort करेंगे उतना अधिक synthetic fiber बनाएंगे। नेचर जितना सपोर्ट करेगा उतना नेचुरल फाइबर पाएंगे। ठीक है, अगर मान के चले कि मैंने आपने कॉटन पौधा लगाया और कॉटन के पौधे मौसम ठीक नहीं हो रहे, मर रहे हैं, तो आपको कॉटन नहीं मिल पाएगा। इसके लिए नेचर पर डिपेंड होना पड़ेगा। पानी का होना चाहिए, मौसम का सही होना चाहिए, फसल का पैदावार अच्छा होना चाहिए, तब जाकर कहीं आपको फाइबर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, आप केमिकल बनाओ और केमिकल से सिंथेटिक फाइबर बनाओ। इसके लिए हम लोग को ये प्लांट और एनिमल सब्सटेंट होते हैं, लेकिन ये केमिकल सब्सटेंट होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैंने बताया, कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब है, जूट। लेकिन इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। अब सिंथेटिक फाइबर जो है, they all are made up of polymer. All synthetic fiber are made up of polymer. Now, what is polymer? So, polymer is a word that has been made by the two Greek words, that is poly and mer. Poly means many and mer means unity. See here, polymer. When many units combine one another by a chemical bond, such kind of long chain molecule is called polymer. So polymer है
is a long chained molecule made up of a large number of similar and small molecules. Okay, a long chain molecule made up of large number of similar or a small molecule repetitions joined to each other by chemical bond. छोटे छोटे यूनिट्स या रिपीटेशंस जो कि केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा बने हुए हैं और एक लंबे चैन का, देखिए स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के जुड़ करके एक बड़े से चैन का, एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं जो कि चैन के रूप में है। तो उसी बड़े से चैन वाले मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो सिंपली अ लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल, अ लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल, लंबा सा चैन वाला अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स रिपीट हुए होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसको यूनिट्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं या रिपीटेशन कह सकते हैं, जॉइन टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और हर एक सिंथेटिक फाइबर, हर एक सिंथेटिक फाइबर किससे बने होते हैं? पॉलीमर से बने होते हैं। अब ये जो पॉलीमर हैं वो देखिए एक छोटे छोटे जो ये यूनिट्स हैं उसी को हम लोग मोनोमर कहते हैं। तो मोनोमर का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल यूनिट विच इज जॉइंड रिपीटेडली टू मेक अ लॉन्ग चैन इज कॉल्ड मोनोमर। फिर समझते हैं, ए स्मॉल यूनिट विच इज जॉइंड रिपीटेडली टू मेक ए लॉन्ग चैन इज कॉल्ड मोनोमर। तो छोटे छोटे वो यूनिट जो बार बार जुड़ करके एक लंबे चैन का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर का कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में ही आ गया था। अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर रिएक्शन करना शुरू कर चुके थे। दरअसल उस वक्त जो दुनिया थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजर रही थी और वो लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दूसरा फेज था जिसमें पूरी दुनिया में चीजें फैल चुकी थी। क्लॉथ इंडस्ट्री में पूरी तरीके से क्रांति आ गई थी, रिवोल्यूशन आ गया था। लोग अलग अलग प्रकार के कलर, अलग अलग कंफर्ट के क्लॉथ्स की मांग कर रहे थे, जिसके लिए कंपनीज के पास और मतलब लोगों के, जो लोग कपड़े की सप्लाई करते थे उन लोगों के पास एक काफी बड़ा डिमांड था कि कलरफुल ड्रेसेस और अलग अलग कंफर्टेबिलिटी के ड्रेसेस बनाए जाएं, और बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो 1930 के करीब रिजल्ट आने शुरू हुए और तब जाकर के सिंथेटिक फाइबर बनाए गए। रेयॉन, नायलॉन, ये कुछ ऐसे फाइबर हैं जो सबसे पहले बनाए गए और उसके बाद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में तो मानो रिवोल्यूशन ही हो गया। अब इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इन सब चीजों को मतलब ये सिंथेटिक फाइबर हमारे जीवन में आए, इसका क्या इस्तेमाल है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके लिमिटेशन है और क्या इसका फायदा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जिसमें रेयॉन, नायलॉन, इन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से। अब देखिए इसमें एक टॉपिक है प्लास्टिक भी, तब जानता है कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक से आज कितने सारे प्रॉब्लम हैं। तो इन सब चीजों को, ये एक बड़ी ही रोचक लेसन है जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ा ये एक फील्ड है जिसमें हम लोग सोच सकते हैं। सोशल और इकोनॉमिकल दोनों फील्ड को बारे में सोचना होता है। हमारी गवर्नमेंट बार बार प्लास्टिक बैन करती है लेकिन फिर से प्लास्टिक आ जाता है। लोगों की क्या मजबूरी है, गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, और इन्वायरमेंटल हैजार्ड क्या है, प्राकृतिक नुकसान क्या है प्लास्टिक के कारण, ये हम सब जानते हैं। फिर भी ये प्लास्टिक हमारे अगल बगल से खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या सच में अगर प्लास्टिक खत्म हो जाए तो हमारी जीवन अभी जैसी है वैसी रहेगी? तो इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे इस लेसन को पढ़ने के बाद। मैं आशा करता हूँ कि आज आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया है, वो कैसे बने होते हैं, उनके थोड़े बहुत इतिहास के बारे में बताया। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ाया जाएगा।